So today students we will be doing the numerical part of this chapter, as in the theory we have already done. So starting with problem example problem 1.1 that is solved in the book. So the question says calculate the molecular mass of the glucose molecule. So this is very simple. You just need to add the atomic masses of all the elements. You have C6H12O6. So you have 6 carbon, so that means 6 mass of carbon plus 12 into mass of hydrogen plus 6 into mass of oxygen. Just add them and it comes out to 180, and unit is very important. Either you can write U or gram per mole. Now next question is problem 1.2, which says that a compound contains 4.07% hydrogen, itna carbon and itna chlorine, and total molecular mass is given to you. You have to determine the empirical formula and the molecular formula. Very simple question. Again, this you have already done in class 9th and 10th. You just make a table, carbon, hydrogen, chlorine, percentage लिख लिया उनका, atomic mass लिख लिया. Then you have to calculate number of moles. So just divide the percentage divided by atomic mass. This comes out to be 2.02, 4.07 and 2.02. Next step is you have to find out simplest whole number ratio. तो क्या करना है simplest whole number ratio में? You have to divide everybody with the smallest number. अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 2.02. तो सबको 2.02 से डिवाइड करने का है. So this comes out to be 1, 2 and 1. So empirical formula becomes carbon 1, hydrogen 2 and chlorine 1. The molecular mass is already given to you in the question. Now what you have to do is to find out the empirical formula mass. Just carbon, 1 carbon, 2 hydrogen and 1 chlorine. Just add them down and this is your empirical formula mass. Now you have to find out the N factor. N factor is what? Molecular mass upon empirical formula mass. So that comes out to be 2. So your molecular formula becomes, इसको CH2Cl को twice कर देंगे, so that becomes C2H4Cl2. So this is your final answer. This is your molecular formula of the compound. Now going to next question is your problem 1.3. Now what does it says? Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 grams of methane. So again this is again very simple question. You have to write the equation on your own. इसमें क्या करना है तुम्हें? कंबशन ऑफ मीथेन दिखाना है. तो मीथेन इज CH4. यू शुड नो द फॉर्मूला. उसका कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा. ठीक है, वहाँ क्वेश्चन बुक में लिखा नहीं है, बट दैट इज अंडरस्टूड कि उसका कंबशन विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. CO2 एंड वाटर आर फॉर्म. यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, और गिवन क्या है? 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू. नाउ अप्लाइंग यूनिटरी मेथड अगेन. पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं अपना. जो चीज़ निकालनी है राइट हैंड साइड पे, जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे. देन यू राइट द यूनिट्स. गिवन क्या है तुम्हें? 22 ग्राम्स नो, तो यू जस्ट राइट द यूनिट फर्स्ट. ग्राम्स ऑफ CO2, और यहाँ पर क्या निकालना है तुम्हें? मोल्स ऑफ मीथेन. तो जस्ट मेक द फॉर्मेट. नाउ लेट अस कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स. अब कितना ग्राम्स ऑफ CO2 आना चाहिए इसकी इक्वेशन के हिसाब से? 1 CO2, दैट मीन्स मास इज 44 ग्राम्स molecular mass. तो 44 grams of CO2 is equals to how many moles according to this equation? 1 mole. तो 1 mole of methane आ गया. अब निकालना कितने के लिए है तुम्हें? 22 ग्राम्स के लिए. तो 22 ग्राम्स के लिए कितना होगा? तो उसके लिए 1 अपनी जगह पे रहेगा. ये सामने वाला लेफ्ट साइड वाला 44 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, एंड सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.5 moles of carbon dioxide. So again very simple, just unitary method you need to apply. Now next question is problem 1.5. Now problem 1.5, what does it say? See, this is again very important question. Limiting reagent पे है. 50 grams of nitrogen, 10 grams of kg of hydrogen, they are mixed to produce ammonia. तो equation खुद से बनाना है. Calculate ammonia formed and identify the limiting reagent with the reaction. Again this is very important question. तो इसमें लिख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फॉर्म द इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन. 50 kg of nitrogen react with 10 kg of hydrogen, and how much ammonia is formed, that you have to calculate in grams. So let us see what is the ratio of all the three components. 1:3:2. इसका मतलब क्या है? अगर ये 1 ग्राम है तो हाइड्रोजन उसका 3 ग्राम हो जाएगा, दैट मीन 3 ग्राम, और अमोनिया जो बनेगा वो उसका डबल बनेगा, 2 ग्राम. ठीक है, सो यही फंडा हमें यूज़ करना है इसमें. तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली वी हैव इन दिस आवर सिस्टम. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो 50
1000 अपॉन, इसको हमने kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन 20 है, दिस कम्स आउट टू बी इतना मोल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लेते हैं हम, W अपॉन मॉलिकुलर मास, तो ये हमने निकाले इतना आ गया। नाउ एज पर आवर इक्वेशन, यू नो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो रिक्वायर्ड है दैट शुड बी 3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू दिस। देखो ना 1:3 का रेशियो है, तो जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन का 3 गुना होना चाहिए। अब होना चाहिए, लेट अस सी 3 गुना करते हैं अगर नाइट्रोजन का इतना है, इसका अगर 3 गुना करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, इतने मोल्स हाइड्रोजन हमारे पास होने चाहिए सिस्टम में ताकि रिएक्शन फुल कंप्लीशन पे चला जाए। बट हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव इन आवर सिस्टम, ओनली 5000 मोल्स, यू नो, तो विच आर लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो वी हैव सॉल्व्ड that hydrogen is a limiting reagent and the पूरा extent of the reaction is going to depend upon hydrogen only, क्योंकि हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो अकेला नाइट्रोजन कुछ नहीं करेगा, and the reaction will stop there and then itself. So we have to take further calculation के लिए we have to take only the limiting reagent जो कि हाइड्रोजन है। Now again we will be using over here unitary method। क्या निकालना है तुम्हें, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालते हैं हम पहले। तो क्वेश्चन मार्क लगाया, फॉर्मेट रेडी किया, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो यहाँ जो गिवन है यहाँ, देन यू राइट डाउन द यूनिट्स, क्या निकालना है हमें, मोल्स ऑफ अमोनिया, और क्या गिवन है हमें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ लेट अस सी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है और कितने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यू नो, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पुट कर देंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन के लिए 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 5000, तो 5000 के लिए कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये 2 वहीं का वहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर, 3 नीचे आ जाएगा, सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस मच मोल्स ऑफ अमोनिया यू गॉट। अब नंबर ऑफ मोल्स से हम W इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला W/m, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड मोलर मास तुम निकालोगे अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड योर आंसर इज इन ग्राम्स। उसको मैंने kg में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स में भी रख दोगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। Now coming to problem 1.6. Now see what does it say. A solution is prepared by adding 2 grams of substance A. Now 2 grams of substance A to 18 grams of water. That means solvent तुम्हारा water है और जो substance A है ये तुम्हारा जो है solute है। तो solute के amount को हम क्या लिखते हैं, WB. We write it WB. तो उसको हमने लिख दिया WB, और जो वाटर है वो WA। मैंने बताया ना A एंड B का कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन, A बड़ा है तो वो बड़ा वाले को डिनोट करेगा, और बड़ा कौन होता है, दैट मीन मेजर अमाउंट सॉल्वेंट, एंड B छोटा है तो छोटे अमाउंट छोटे वाले को डिनोट करेगा, दैट मीन्स इन माइनर अमाउंट, दैट मीन्स इट इज सोल्यूट। तो WB इज 2 ग्राम्स एंड WA इज 18 ग्राम्स। अब निकालना क्या है तुम्हें, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है। अब मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट वैसे निकलेगा जैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज जितने तुम्हारे मार्क्स है, दैट मीन यहाँ पर जितना वेट तुम्हारा सोल्यूट का है अपॉन टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या क्या है, A और B मिला के, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, यू गेट योर परसेंटेज। सो WB कितना है, 2 ग्राम्स अपॉन टोटल इज 18 + 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 10% सोल्यूशन, राइट। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम 1.7, वो क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। मोलैरिटी निकालना है तो M को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम्स एंड एनफ वाटर। 4 ग्राम्स क्या है, मतलब जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सोल्यूट होता है। तो सोल्यूट WB हो गया तुम्हारा 4 ग्राम्स, 250 ml वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 250 ml हो गया, एंड यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी। वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1/V इंटू 1000 इसलिए लगाया है बिकॉज वॉल्यूम ml में है, तो कन्वर्ट इनटू लीटर्स, ये 1000 कन्वर्जन फैक्टर यहाँ लगा है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, एंड द यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट इज मोलर। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 1.8. अगेन दिस इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, एंड जस्ट लिसन केयरफुली। नाउ द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, तुम्हें यहाँ मोलैरिटी दे रखा है 3 मोलर, एंड डेंसिटी गिवन है NaCl सोल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालने का है। तो इसमें और भी कुछ भी नहीं गिवन है तुम्हें, तो हम उसका स्क्वीज फार्मूला यूज़ करेंगे मोलैरिटी का, जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर है, दैट मीन्स NB अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनीथिंग, तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, मोलैरिटी की वैल्यू डाल दिया 3 इज इक्वल टू NB अपॉन V,
अब नीचे अगर हम 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, दैट इज अंडरस्टूड। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स NB इज इक्वल टू 3 और जो वॉल्यूम हो गया वो 1 लीटर हो जाएगा। तो ये मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। तो यहीं गड़बड़ हो जाएगी तो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से इसका मतलब ये है, इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर, इसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 3 मोल्स एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो लीटर को हम 1000 ml में इसलिए करेंगे क्योंकि डेंसिटी हमारी ml में दे रखी है, तो इसको हम ml में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 ml होता है। नाउ लेट अस ओपन अप दिस NB। NB होता है WB अपॉन MB। NB का वैल्यू डाल दिया, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl पता ही है तुम्हें 58.5, W निकाल लिया इतना, ये तुम्हारा सोल्यूट आ गया। नाउ डेंसिटी अब दे रखा है, डेंसिटी को यूज़ करके हम वहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एंटायर सोल्यूशन दिया हुआ है, तो मोलारिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमने निकाल रखा है, वॉल्यूम इज़ 1 लीटर और यू कैन से 1000 ml। तो वॉल्यूम तो पता है, यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा, दैट मीन्स पूरे सोल्यूशन का मास। एंड पूरे सोल्यूशन का मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ एंटायर सोल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पूरे सोल्यूशन का मास हमने निकाल लिया एंड वहाँ से WB भी हमने ऊपर निकाल लिया था। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यहाँ से यू विल गेट वैल्यू ऑफ WA। अब WA आ गया तो नाउ देर इज़ नो प्रॉब्लम, अब मोलैलिटी निकल जाएगा, NB अपॉन WA इंटू 1000। NB तो पता ही है 3 मोल्स, WA अभी निकाल लिया, इंटू 1000 करके यू विल गेट द वैल्यू, एंड यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, दैट इज मोलर। नाउ this finishes with our in-text example, solved example. Now coming to your exercise question number 1. Calculate the molar mass of the following compounds. Again, this is the very elementary, 2 hydrogen plus oxygen and everything. ऐसे similarly, carbon dioxide, carbon plus 2 oxygen and CH4, carbon plus 4 hydrogen. This is very simple, you can do yourself. Then question number 1.2, it says calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate. अब मास परसेंटेज वैसे ही निकालेंगे जैसे हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स छिपे हुए हैं। वाई? बिकॉज उसने बोला हर एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। एक सोडियम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब हम तीनों का मास परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट। तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगा तुम्हारा? मास परसेंट जितना तुम्हारा सोडियम है अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब मास सोडियम का मास कितना होता है? 23, एंड 2 सोडियम है तो 2 इंटू 23 हो जाएगा अपॉन टोटल मास। तो ये पूरे कंपाउंड का जो फॉर्मूला है Na2SO4, इस पूरे का मास निकाल लेंगे अपॉन टोटल मास इंटू 100, दैट गिव्स यू परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब दूसरा सल्फर का निकाल लेते हैं। सल्फर कितने आइटम्स है? एक ही सल्फर है, तो एक ही का मास डालेंगे हम 32 अपॉन टोटल इंटू 100, इतना आ गया। और लास्ट वाला जो बच गया उसको हम 100 में से इन दोनों को माइनस करके ऐड करके दोनों को ऐड कर दिया एंड सबट्रैक्ट करके यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 which says, question number 3 which say determine the empirical formula of an oxide of an iron which has percentage of iron and oxygen is given to you. So again you have to make a table like this: elements name, percentage, mass, you need to know the iron 56 gram per mole, and then you have to find number of moles, relative number of moles, percentage upon mass करके, and then next में simple whole number ratio निकालना है। उसमें क्या करेंगे? divide all of them by स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ दोनों में से स्मॉलेस्ट इज 1.25, तो डिवाइड बाय 1.25, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 and 1। अब 1 and 1.5, नाउ देयर इज प्रॉब्लम इज देयर विद 1.5, अब 1.5 को 0.5 में नहीं होना चाहिए ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैन नॉट बी 1.5, सो इसको होल नंबर में लाने के लिए वील मल्टीप्लाई इट बाय 2, दिस बिकम्स 2 and 3 and your empirical formula becomes iron 2 and oxygen 3. So this is the empirical formula. Next question number 4, what does it say? Is calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. So again you have to write the equation on your own. 1 mole of carbon is burnt in air, CO2, and how much CO2 will be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. So 1 mole के लिए कितना CO2 produce होगा? तो that is simple, 1 mole
1 मोल ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। बैलेंस के हिसाब से अगर 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल CO2 बनेगी। तो 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 ऑन कंबशन, दैट मीन्स 1 मोल का मास कितना है 44 ग्राम्स ऑफ CO2, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन ऐड करके। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि second part is saying when 1 mole of carbon is burnt with 16 grams of dioxygen। अब ये 16 ग्राम कर दिया, अब ये थोड़ा ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन देखते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव यू 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ 32 ग्राम्स और 44 ग्राम्स बनेगा। लेकिन 32 की जगह नाउ इट्स क्वेश्चन इज सेइंग 16 ग्राम लिया। अगर तुम इसको आधा कर रहे हो तो सब चीज़ें आधी आधी हो जाएंगी ना। 1 मोल लिया तो 1 मोल बनेगा और 1 मोल का मतलब 12 ग्राम, 32 ग्राम्स एंड 44 ग्राम। बट 32 ग्राम्स की जगह अगर तुम 16 कर दोगे दैट मीन्स तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन विल गेट कंज्यूम्ड अर्लियर, तो दैट इज गुड सर्विंग एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो रेस्ट ऑफ तो ओनली 16 ग्राम से हाफ मोल विल बी यूज्ड अप इन कार्बन, रेस्ट हाफ मोल विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो इसलिए हाफ मोल रिएक्शन करेगा, अगर ये हाफ करेंगे तो ये भी हाफ मोल रिएक्शन करेगा और ये भी हाफ मोल प्रोड्यूस होगा। तो हाफ ग्राम जो ग्राम होगा उसका 44 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। एंड देन थर्ड पार्ट में अगेन इट इज सेइंग, सी उसमें क्या है बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्निंग 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्साइड। अब हम इसको 2 मोल्स करें या 3 मोल्स करें या 4 मोल्स करें, इट हार्डली मैटर्स टू अस। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको आधा किया है तो ये आधा मोल ही यूज़ होगा और ये आधा मोल फॉर्म होगा। अगर हमने 60 ग्राम कर लिया मतलब 32 का हाफ, तो ओनली हाफ मोल विल बी यूज्ड इन रिएक्शन विद 60 ग्राम एंड हाफ मोल ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। अब 2 मोल्स अगर ले लिया उसमें भी हाफ मोल ही यूज होगा एंड 1.5 मोल विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द सोल्यूशन। तो अगेन लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स्ट्रा एंड बनेगा कितना, बनेगा तुम्हारा उतना ही हाफ मोल, दैट मीन्स 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो भी है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। यहाँ पर सोडियम एसिटेट तुम्हारा क्या है, सोल्यूट है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml वॉल्यूम है क्योंकि ml इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ इतना मोलर एक्वा सोल्यूशन इन मोलारिटी गिवन है, मोलर मास में गिवन है इतना mb। सो लेट अस सी, फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन व्हाट ऑल इज गिवन टू यू, WB दे निकालना है, WB इज मास ऑफ सोडियम एसिटेट, वॉल्यूम दिया हुआ है and molarity given है and mb molar mass is also given to you. Straight away application of formula molarity WB by mb into 1 upon v into 1000. Everything is known to you, given to you except WB, so you can find WB in grams. Very simple question, no problem. Now next question is question number 6, calculate the concentration of nitric acid in moles per liter। ना यहाँ प्रॉब्लम आती है, अब कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में भी हो सकती है, मोलारिटी भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकती है या मास परसेंटेज, एनी ऑफ द दीज बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है यू हैव टू कैलकुलेट इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का यूनिट किसका होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट मोलारिटी इन अ सैम्पल which has a density of इतना ग्राम पर ml, डेंसिटी दिया हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड बीइंग इतना। ना मास परसेंटेज 69% का मतलब क्या है कि WB आउट ऑफ 100, WB इतना सोल्यूट है और बाकी सारा पानी है। तो फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन, एनालाइज द सिचुएशन कि व्हाट हैज़ बीन गिवन टू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मोलैरिटी निकालना है, डेंसिटी दिस इज कॉल्ड रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी, WB गिवन है, WA निकाल लेंगे 100 - 69, दैट बिकम्स WA। Then you apply the formula, just straight away application of the formula WB upon MB 1 upon V। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है, यू डोंट नो द वॉल्यूम। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में तो वॉल्यूम गिवन था बट वॉल्यूम इज नॉट गिवन टू यू बट डेंसिटी इज गिवन टू यू, सो लेट्स मेक यूज ऑफ डेंसिटी टू फाइंड आउट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड जब भी परसेंटेज में होगा ना जो क्वेश्चन परसेंटेज, दैट मीन्स टोटल मास, यहाँ जो मास लेंगे हम टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन विल टेक, तो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम्स 100 बिकॉज परसेंटेज में है, तो मास की जगह विल टेक 100 अपॉन डेंसिटी, ये तुम्हारा वॉल्यूम। तो ये जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ओवर, ये उल्टा हो जाएगा बिकॉज ये 1 अपॉन v है तो दिस विल बिकम इनवर्स, तो 1.41 अपॉन, एंड यू कैन सॉल्व इट। यूनिट इज मोलैरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कितना कॉपर मिलेगा फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो
पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं. कॉपर का इतना होता है, सल्फर 32 एंड जस्ट कैलकुलेट, एंड कॉपर का एटॉमिक मास इतना है. नाउ यू हैव टू यूज यूनिटरी मेथड सिंपली. तो क्या निकालना है, पहले अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. क्या निकालना है तुम्हें, एंड यूनिट निकालना है हमें ग्राम्स ऑफ कॉपर, और गिवन क्या है, डैश ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट. नाउ लेट इज कंप्लीट. अब इतना कॉपर सल्फेट का मास कितना है, दिस मच. तो दिस मच कॉपर सल्फेट विल गिव यू हाउ मच कॉपर, एक ही कॉपर है ना उसके अंदर, कॉपर सल्फेट में 1 कॉपर, तो यू विल गेट इतना ग्राम्स ऑफ कॉपर. तो 100 ग्राम्स कॉपर सल्फेट से कितना होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे आ जाएगा, एंड सामने वाला सामने मल्टीप्लाई, एंड यू गेट द आंसर. सिंपल यूनिटरी मेथड. नाउ क्वेश्चन 8 जो है वो रेपिटेशन है क्वेश्चन 3 का, सेम क्वेश्चन है से, सो नीड नॉट डू. क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. अब इसमें तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, बिकॉज आइसोटोप है ना, वेन एवर आइसोटोप्स आर गिवन तो यू हैव टू यूज एवरेज एटॉमिक मास. एंड उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अदर आइसोटोप. ये 1 and 2 का मतलब ये है कि एक फर्स्ट आइसोटोप का मास और उसका परसेंटेज, एंड नंबर 2 ये जो ब्रैकेट में लिखा है दैट मीन्स मास ऑफ द सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स परसेंटेज अपॉन 100. तो यहाँ पर तुम्हारे दो दे रखे हैं, देखो 75.5 ये तुम्हारा परसेंटेज है और ये इसका मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. एंड दूसरा आइसोटॉप ये है, इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय इसका मास, दैट गिव यू. तो ये वो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय 100, तो इतना यू आ जाएगा. यूनिट ऑल्सो यू नीड टू राइट, यूनिट इज यू, इतना यू, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10. सी क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी, यू नो. 3 moles of ethane, in 3 moles of ethane calculate the following. क्या करना है, number of moles of the carbon atom. very very easy. ये तो क्वेश्चन में से नजर आ रहा है. if you have 3 moles of ethane you have to find out number of moles of carbon. तो अगर एक मोल देखते हो, 1 mole of ethane C2H4 में 2 कार्बन आते हैं, तो 3 moles में कितने होंगे, 6. तो बच्चे भी कर लेंगे. so in 1 mole of ethane there are 2 carbon atoms, 2 moles of carbon. so in 3 moles of ethane there will be 6 moles of carbon atom, right. देन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं. अब हाइड्रोजन निकाल के देखो, 1 मोल में तो 6 हाइड्रोजन है, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 18. सिंपल. देन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकालना. अब ये डिफरेंट है थोड़ा सा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन में यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे. जो चीज़ निकालनी है राइट हैंड साइड पे फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, एंड जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, देन यू राइट डाउन द यूनिट्स. निकालना क्या हमें, मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन लिख लिए यहाँ पर, और गिवन क्या है तुम्हारा, मोल्स ऑफ इथेन. अब हम यूनिटरी मेथड में पहले हम अपनी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अपने आप से बनाएंगे. तो 1 मोल ऑफ इथेन, यू नो 1 मोल ऑफ इथेन विल गिव यू हाउ मेनी, कोई भी 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, नो. तो दिस इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन हो जाएंगे. तो 1 मोल में तो इतने हो गए, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने होने चाहिए, ये वहीं का वही रहेगा, 1 नीचे आ जाएगा, एंड सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, मॉलिक्यूल्स भी लिखना है यूनिट, दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. नाउ व्हाट डज दिस से, सी what is the concentration of sugar to make in moles per liter. again no, see it is not specifying कि concentration किस में निकालना है, मोलैलिटी है, मास परसेंटेज है, और मोल फ्रैक्शन है. तो you have to identify कि moles per liter किसका यूनिट है, that is the unit of molarity. that means you have to find out molarity in this case. and 20 grams are dissolved. 20 grams जिसको डिजोल्व कर रहे हो तो वो सोल्यूट है, that means ये क्या हुआ, WB. in enough water to make a final volume up to 2 liters. तो ये वॉल्यूम दे रखा है. तो वेरी सिंपल, मोलैरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. फर्स्ट टू एनालाइज, लिख लो क्या क्या गिवन है, मोलैरिटी निकालना है, WB गिवन है, वॉल्यूम 2 लीटर्स है, एंड शुगर का मास तुम्हें याद रखना है, दैट इज 340. मतलब इतना लंबा कैलकुलेट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर इज आस्क्ड, एंड ग्लूकोज का 180 होता है, एंड शुगर का 342 ग्राम्स पर मोल होता है. तो इट्स बेटर इफ़ यू रिमेंबर दिस वैल्यू, बिकॉज ये बहुत बार यूज़ होती है शुगर. तो मोलैरिटी इज WB by MB into 1/B. यहाँ 1000 नहीं लगाया, वाई, बिकॉज वॉल्यूम इज ऑलरेडी इन लीटर्स, सो नो नीड टू राइट 1000 over here. So WB and MB everything is given to you, and the unit would be molarity. Now next question number 12. Now question number 12. If the density of methanol is this much, what is its volume needed for making इतना liters of 0.25 m solution? Now ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. डेंसिटी दे रखा है मिथेनॉल का, एंड वॉल्यूम निकालना है नीडेड टू मेक इतना लीटर ऑफ इतना मोलर सोल्यूशन. तो सबसे पहले क्योंकि हमें मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, एंड मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ तुम्हें.
So let us make use of molarity first. WB by MB into 1 upon V. Molarity is given to you. WB upon molecular mass. मिथेनॉल का फॉर्मूला तुम्हें पता है. मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH. So just calculate. This comes out to be 32. Just substitute the value. WB नहीं पता हमें. वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर्स है. इतने मोलर सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना है. एंड लीटर्स है तो इसलिए 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है. So you calculate WB from here 20 grams. Now let's make use of density. Density is what? Mass upon volume. तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है हमें. अब मास तुम्हारा कितना मास है अभी निकाला हमने. मास ऑफ सॉल्यूट तुमने 20 ग्राम्स लिया है. 20 ग्राम्स अपॉन उसी का, क्योंकि डेंसिटी मिथेनॉल की दी हुई है तो मास भी मिथेनॉल का होना चाहिए ना. तो इसकी जगह वी कैन राइट WB ऑल्सो, राइट. तो WB और उसी का ही डेंसिटी. तो दिस कम्स आउट टू बी दिस मच वॉल्यूम. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. ये सब नहीं है सिलेबस में. ओके, दिस इज नॉट देयर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेम क्वेश्चन अपीयर्स इन क्लास 12th ऑल्सो, सोल्यूशन पार्ट, सोल्यूशन चैप्टर. So a sample of drinking water was found to be severely contaminated with the chloroform, supposed to be carcinogenic in nature, and the level of contamination was found out to be 15 ppm. Now what do you mean by 15 ppm? ppm means parts per million. अब एक्सप्रेस करना है इसको परसेंटेज बाय मास में एंड मोलालिटी में. तो अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, एंड क्योंकि ये 12th में भी है इसलिए इट इज़ सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 15 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आउट ऑफ, वैसे परसेंटेज जब लेते हैं तो वी टेक आउट ऑफ 100, राइट. तो यहाँ हमें ppm में दिया हुआ है, दैट मीन्स आउट ऑफ 1 मिलियन यू हैव टू टेक. तो आउट ऑफ 1 मिलियन टोटल सोल्यूशन अगर 1 मिलियन है तो उसमें से इतना सोल्यूट है और बाकी सब हमारा सॉल्वेंट है. तो WB 15 ग्राम्स, तो WA विल बी हाउ मच? 1 मिलियन माइनस 15, क्योंकि तो टोटल सोल्यूशन. जैसे हम 100 माइनस करते हैं तो यहाँ 1 मिलियन माइनस दिस थिंग. अगेन राउंड ऑफ करोगे तो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 1 मिलियन ओनली. तो इट हार्डली मैटर्स, यू नो. 1 मिलियन में से 15 माइनस करेंगे तो इट हार्डली मैटर्स. सो यू कैन टेक इट राउंड इट ऑफ. नाउ परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, दैट इज WB अपॉन टोटल WA प्लस WB इंटू 100. सिंपली यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड तुम्हारा इतना परसेंटेज आ जाएगा. एंड नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी. मोलालिटी का फॉर्मूला लगा दो, WB बाई MB 1 अपॉन WA इंटू 1000. मोलालिटी WB 15 अपॉन मोलिकुलर मास निकाल लोगे. क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला इज गिवन टू यू. सी, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला इज गिवन टू यू. एंड WA 1 मिलियन है, एंड जस्ट सॉल्व इट, एंड द यूनिट इज मास, मोलालिटी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. सी, क्वेश्चन नंबर 20. Next page. All this is not, MCQ is not in there. Your significant figure has all been deleted. Now question 23 again, very easy question, you know. In a reaction A plus B2 give rise to AB2, identify the limiting reagent if any in this following reaction. So first is 300 but first you have to see what is the ratio. इन तीनों का आपस में रेशियो क्या है. तो रेशियो है 1:1:1. See, A plus B2 plus AB2, 1 मोल प्लस 1 मोल और 1 मोल. तो 1:1:1, मतलब तीनों बराबर चाहिए तुम्हें. अगर तुम एक एटम ए का लेते हो, एक मॉलिक्यूल B2 का लेते हो, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2 विल बी फॉर्म. ये 2 लेते हो तो ये भी 2 होने चाहिए और ये भी 2 होने चाहिए, राइट. तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए यू हैव टू सी कि नंबर ऑफ रेशियोज देखना है. तो फर्स्ट 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. अब ये तो 300 है लेकिन B2 तुम्हारे 200 हो गए, तो ये कम रह गया, तो ये पहले कंज्यूम हो जाएगा. तो दिस बिकम्स योर लिमिटिंग reagent. So B2 will be your limiting reagent, and and A will be left behind. So B is your limiting reagent. Then 2 moles of A and 3 moles of B. Again यहाँ देखो, यहाँ 2 moles है तो ये भी 2 होने चाहिए थे, बट ये एक्स्ट्रा है तो ये लिमिटिंग reagent हो जाएगा, and 1 mole of B will be left behind. ठीक है. So A is the limiting reagent. अब 100 atoms of A and 100, अब ये बिल्कुल करेक्ट है, यू नो. The reaction will go to completion. कुछ भी बचेगा नहीं, everything will be get consumed, and पूरा extent तक reaction जाएगा, because दोनों का same number of atoms 1:1 ratio में combine कर, there is no limiting reagent. 5 moles of A and 2.5 moles of B. अब इसमें क्या है, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 ही यूज़ होगा, and rest 2.5 will be left behind in the solution. So B is going to be the limiting reagent. Very very easy. Now coming to next question is, अच्छा एक पार्ट और है, 2.5 मोल्स ऑफ ए एंड 5. अब ये उल्टा करके, अगर ये 2.5 यूज़ होगा तो ये भी 2.5 यूज़ होगा, राइट. सो रेस्ट 2, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? A, एंड 2.5 मोल्स ऑफ B विल बी लेफ्ट बिहाइंड.
Now next question number 24. Again this is very important question, just similar to that example we had done in the exercise in text में. Now dinitrogen and hydrogen, the equation दे रखी है. You have to calculate the mass of ammonia produced if that means 2000 grams of nitrogen reacts with 1000 grams of dihydrogen, and will any of the two reactant remain unreacted? अगर limiting reagent होगा तो naturally कोई ना कोई एक तो reactant unreacted रह जाएगा. And if yes, which one and what would be its mass? Now let us see the equation. N2 plus hydrogen give rise to ammonia. 2000, 1000 और ये निकालना है. Now first of all we have to see the ratio in which they are combining. So 1:3:2 में हो रहा है. 1:3:2. So let us see number of moles हमारे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के कितने कितने हैं in our reaction mixture. तो number of moles of nitrogen W/m निकाल लिया. And similarly हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले W अपॉन मॉलिक्यूलर मास. नाउ यू सी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हाइड्रोजन है दैट इज 3 times दैट ऑफ नाइट्रोजन. हाइड्रोजन इज 3 times दैट ऑफ नाइट्रोजन. तो हम देखते हैं कि हमारे रिएक्शन में क्या वो 3 गुना है हाइड्रोजन. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो 1:3. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैज़ टू बी 3 times दैट ऑफ नाइट्रोजन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड इज 3 times. तो लेट अस सी कि 3 गुना कितना आता है. तो इतने नाइट्रोजन हमारे पास, इतना हाइड्रोजन हमारे पास होना चाहिए. और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास ही 500 और होना चाहिए कितना 214. दैट मीन्स बहुत एक्सेस में है, ये ज़्यादा है लेकिन इतना चाहिए नहीं हमें क्वांटिटी. इसका मतलब कौन पहले कंज्यूम हो जाएगा? दूसरा. नाइट्रोजन विल बी कंज्यूम्ड अर्लियर. सो दैट मीन्स योर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट. तो आउट ऑफ 500 खाली इतना तुम्हारा कंज्यूम होगा एंड रेस्ट कितना बचा? 285.58 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन आवर रिएक्शन मिक्सचर. So nitrogen is going to be the limiting reagent. Now अब अमोनिया निकालने के लिए we have to use the unitary method. अब unitary method में क्या होगा? फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं. जो चीज़ निकालनी है राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ अमोनिया एंड जो गिवन है जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ले लेते हैं डैश मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. अब इक्वेशन हम अपने हिसाब से करते हैं. वो बैलेंस करी थी ना, कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेगा. सो 71.4 जो हमने निकाला था 71.4 ऑफ नाइट्रोजन से कितना बनेगा? सो अगेन 2 वहीं का वहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर नीचे आ जाएगा, सामने वाला सामने मल्टीप्लाई आ जाएगा, जस्ट मच मोल्स ऑफ अमोनिया. अब मोल्स से हम W निकाल सकते हैं वेरी इजीली. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W अपॉन W NH3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म. अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि एनी रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड. यस, क्योंकि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड. अब वो पूछ रहे कितना बचेगा, तो लेट अस सी. हमने माइनस करा था तो इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो से हैं वो अनरिएक्टेड बच जाएंगे. अब मोल से हम W भी निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड W अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो इतने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट बिहाइंड अनरिएक्टेड. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स से ऑलवेज यू कैन इजीली फाइंड आउट W. Now next question number is 26. Now see, if 10 volumes of dihydrogen gas reacts with 5 volumes of dioxygen gas, how many volume of water vapor would be produced? So you have to first form the equation. Water vapor बन रहे हैं किससे? हाइड्रोजन प्लस O2 give rise to water. अब बैलेंस करेंगे, उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करेंगे. 2:1:2 का रेशियो है. अब वो क्या कह रहा है इन द क्वेश्चन? इट वॉज सेइंग कि इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन, मतलब अगर हाइड्रोजन 10 वॉल्यूम्स लेते हो है ना, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाईऑक्सीजन, ऑक्सीजन 5 वॉल्यूम लेते हैं, तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस? तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर ये हम 10 कर रहे हैं, 10 मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 5, तो पूरी सबको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नो, क्योंकि नंबर ऑफ रेशियो जो है, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना. अगर इसको 5 से 10 कर लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो एवरीथिंग यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये 10 हो गया, ये 5 मोल्स हो गया, ये 10 मोल्स. तो सिंपली 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी फॉर्म्ड इन द सिस्टम. नाउ क्वेश्चन नंबर, ये सब नहीं है तुम्हारे सिलेबस में. देन गोइंग कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32. यस, अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है, यू नो, आइसोटोप वाला, परसेंटेज वाला. सबका परसेंटेज दे रखा है, एनाटॉमिक मास दे रखा है. क्या करेंगे इसमें? एवरेज मास निकालना है. तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास, सबको प्लस करके एंड डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मास, परसेंटेज बाय मास प्लस परसेंटेज इंटू मास अपॉन 100. इतना तुम्हारा ग्राम पर मोल यू आ जाएगा, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 33. अगेन सी,
Now what is question number 33? Kind 33. Now calculate the number of atoms in each of the following. Again this is very tricky, सब एक जैसे लग रहे हैं लेकिन सब एक जैसे है नहीं. सी फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, तुम्हें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स हर एक केस में निकालना है. तो लेट अस यूज द यूनिटरी मेथड. इसमें जो चीज़ निकालना है हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स. तो क्वेश्चन मार्क लगाया है नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में, और जो गिवन है क्या है फर्स्ट केस में मोल्स ऑफ हीलियम. तो मोल्स ऑफ हीलियम. तो लेट अस कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन ऑन योर ओन. तो 1 मोल ऑफ हीलियम कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स, राइट, अवोगाड्रो नंबर के लिए. तो 52 मोल्स के लिए कितने होंगे, तो ये वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी दिस मच एटम्स. दिस इज क्वाइट इजी. नाउ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इज द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में यू दे दिया था, यू ऑफ हीलियम. अब यू का मतलब क्या होता है, दिस इज योर एक यूनिफाइड मास, नो. तो उसमें तुम्हें क्या करना है, 1 मोल के लिए होता है, दिस इज फॉर 1 मोल. तो या एटम के लिए ले सकते हो, एक एटम का मास है यहाँ पर, नो, हीलियम एटम का मास. तो इसमें हम क्या लेंगे, जो चीज़ निकालना है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, और यहाँ क्या दे रखा है यू. तो जब भी यू दे रखा होगा तो उसका मास लिखेंगे 4. हीलियम का मास होता है 4. तो 4U ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम. तो ये 1 एटम का मास, यहाँ पर हम 1 एवोगाड्रो नंबर नहीं लेंगे, राइट. बस यहाँ यही डिफरेंस है. यू विल नॉट टेक एवोगाड्रो नंबर 1 एटम एंड 4 हीलियम. तो 4 मास है 1 एटम का. तो 52 मास कितने एटम्स का होगा, तो 13 एटम्स. नेक्स्ट में ग्राम्स लिया है हमने. ग्राम्स में तो वही होगा तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, एवोगाड्रो नंबर लेंगे यहाँ पर, सेम जो फर्स्ट केस था. तो डैश ग्राम्स इज इक्वल टू डैश नंबर ऑफ एटम्स. तो 4 ग्राम्स के लिए इतना है, 52 ग्राम्स के लिए कितने होंगे, ठीक है. बस दोनों में फ़र्क ये है, जहाँ पर यू होगा ना वहाँ पर हम 1 एटम लेंगे क्योंकि वो एक एटम का मास है, और जहाँ ग्राम्स होगा वहाँ तुम्हें एवोगाड्रो नंबर लेंगे, राइट. देन क्वेश्चन नंबर दिस इज 34. See question number 34. A welding gas contains this much carbon, hydrogen. Again, this is a very lengthy question. No, we discussed carbon, hydrogen, and burning a small sample of oxygen gives this much carbon dioxide, this much water, and no other products are formed. फिर total volume 10 liters है. STP में standard temperature and pressure of this welding gas. वैसे STP volume होता है 22.4 liters होता है. At STP welding gas was formed to with this much grams. Total mass इतना है. Calculate empirical formula, molar mass of the gas, and the molecular formula of the compound. This is the lengthiest question of this chapter, but quite easy. You go step by step. It is very easy, but calculation थोड़ी लंबी है इसकी. नो, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो दे रखा है ना वो कार्बन से बन रहा है, एंड जो वाटर बन रहा है वो हाइड्रोजन से बन रहा है. वील टेक इट दैट वे एंड वी विल टेक यूनिटरी मेथड. सबसे पहले हम निकालते हैं यूनिटरी मेथड. सबसे पहले हम निकालना है मास ऑफ कार्बन, कितना कार्बन हमारा यूज जब हो रहा है. तो यहाँ निकालते हैं डैश ग्राम्स ऑफ कार्बन, और यहाँ लेंगे कार्बन कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से. तो डैश ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम्स. तो 44 ग्राम से कितना आ रहा है, 12 ग्राम्स, क्योंकि एक ही कार्बन है उसमें. तो 3.38, बिकॉज स्टार्टिंग में दे रखा है टोटल इतना सैंपल लिया तुमने कंपाउंड का, तो इतने ग्राम से कितना कार्बन आएगा, 12 वहीं का वहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे आ जाएगा, सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी इतना ग्राम्स ऑफ कार्बन. अब सिमिलरली हम इसमें निकालते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन. अब हम इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं. मास ऑफ हाइड्रोजन किससे निकला, वाटर से. तो यहाँ लिखेंगे हम जो निकालना है राइट हैंड साइड पे डैश ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, और किससे निकालना है, डैश ग्राम्स ऑफ वाटर. नाउ लेट अस कंप्लीट. वाटर का मास है 18 ग्राम्स. तो 18 ग्राम्स में कितना हाइड्रोजन है, 2 है हाइड्रोजन. तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 ग्राम्स. एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम्स. एंड इतना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतने वाटर से कितना होगा, तो 2 वहीं का वहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और सामने वाला सामने मल्टीप्लाई. तो दिस मच ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया. तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड तुम्हें दे रखा है. टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज कितना आया, इन दोनों को टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. अब ये कैसे निकलेगा, पॉइंट, ये तुम्हारा दोनों को ऐड करके यू विल गेट द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. ओके, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, क्योंकि उसमें बोला कि कोई और एलिमेंट नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो टोटल मास इतना आ गया हमारा, कार्बन उतना था और हाइड्रोजन निकाल लिया दोनों हमने. तो जस्ट एडेड एंड यू गेट द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन. अब
परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, कितना कार्बन हमने निकाला वो अपॉन ये टोटल जो निकाला अपॉन टोटल इंटू 100 इतना परसेंट। और हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे हम, 100 में से माइनस कर देंगे तो यू गेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब फिर वही हमारा टैबुलर फॉर्म आ गया, टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, एलिमेंट, मास खुद लिखेंगे, परसेंटेज हमने निकाली है ऊपर से वही लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, परसेंटेज अपॉन मास ये निकल गया। फिर इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करेंगे, क्या करेंगे सबसे छोटे से डिवाइड करेंगे, दोनों आर ऑलवेज सेम, तो आंसर विल बी 1 and 1। दैट मीन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स 1 1 आ रहे हैं, CH, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH। अब उसका मॉलिकुलर मास निकालना है, तो मॉलिकुलर मास निकालने के लिए n हमें नहीं पता है ना, मॉलिकुलर मास भी नहीं पता और n भी नहीं पता, तो कैसे होगा, तो लेकिन हमें वॉल्यूम दे रखा है एट STP, तो हम वो चीज़ निकालते हैं। लेट अस फाइंड आउट ग्राम्स, पूरे कंपाउंड का ये जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला है ना, मॉलिकुलर मास निकालते हैं, एंड मॉलिकुलर मास यूनिट इज ग्राम, डैश ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड एंड डैश लीटर्स ऑफ द वॉल्यूम, क्योंकि हमें 10 लीटर्स दे रखा है, तो पहले हम वही यूज़ करते हैं। 10 लीटर्स वॉल्यूम का जो मास है वो 11.6 ग्राम है, दे रखा है, ठीक है। तो 22.4 लीटर्स, क्योंकि STP पे कितना वॉल्यूम होता है 22.4, तो अगर STP हम इतना वॉल्यूम लेते हैं तो कितना होगा मास उसका, तो 11.6 वहीं का वहीं रहेगा, 10 नीचे आ जाएगा और सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये 11.6 हमें गिवन था। नाउ तो दिस बिकम्स मॉलिकुलर मास हमारा इतना आ गया। अब मॉलिकुलर मास तो आ गया, उससे हम n निकाल लेते हैं, राइट। नो यू हैव निकालना क्या था इसमें, यू हैव टू फाइंड आउट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, मॉलिकुलर मास आ गया एंड दी मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकलेगा इसमें, n ये देखो n फैक्टर, यहाँ पर आई जस्ट डू इट, सी n फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिकुलर मास कितना निकाला तुमने अभी 25.9, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 26, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहाँ निकाल लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू कितना है, कार्बन 12 + 1 13 आया, तो ये डिवाइडेड बाय 13 तो कितना आ गया 2। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सी व्हाट इज गोइंग टू बी द मॉलिकुलर फॉर्मूला, CH, n फैक्टर आ गया तुम्हारा, CH का हम ट्वाइस करेंगे तो डैट बिकम्स C2H2, तो दिस इज योर मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। नाउ देन 35 question, again this is very easy question, 35 question, calculate calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and carbon dioxide according to the equation this okay, it balanced है, okay, no problem. What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of इतना मोलर HCl, तो मोलैरिटी दिया हुआ है ना, तो हम मोलैरिटी का यूज़ करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, तुम्हें निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट एंड इतना ml और इतना मोलर, तो मोलैरिटी ऑफ HCl इज बीन गिवन टू यू, तो लेट्स मेक यूज ऑफ मोलैरिटी फर्स्ट। सो मोलैरिटी इज वो WB/MB इंटू 1/V इंटू 1000 लगेगा, बिकॉज ये ml में है, तो जस्ट पुट WB नहीं पता हमें, वॉल्यूम पता है, जस्ट पुट एंड MB पता है, एवरीथिंग यू नो एक्सेप्ट WB, तो WB यहाँ से आगे इतना ग्राम। नाउ विल मेक यूज ऑफ यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड में निकालना क्या है, तुम्हें निकालना डैश ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकालना है, और गिवन जो है डैश ग्राम्स ऑफ HCl। नो लेट अस सब्स्टिट्यूट, कितना HCl यूज़ हो रहा है, देखो हमारी इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल्स ऑफ HCl, और एक का होता है 36.5, तो 2 मोल्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इतना ग्राम्स ऑफ HCl से कितना ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, इसका मास, इसका 1 मोल आ रहा है, एंड 1 मोल का मास अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो दिस कम्स आउट टू बी 100 ग्राम। तो इतना HCl से इतना 100 ग्राम्स आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो 0.68 HCl से कितना आएगा, 100 वहीं का वहीं रहेगा, ये ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड नीचे एंड सामने वाला सामने, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस मच ग्राम्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन 36, व्हाट डज इट सेज, इतना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आंसर नहीं है इसका। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू बैलेंस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद इतना ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो कितना HCl निकालना है तुम्हें ये बताना है। तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बैलेंस भी है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई यूनिटरी मेथड। निकालना क्या है हमें, हाउ मच ग्राम्स ऑफ HCl, तो डैश ग्राम्स ऑफ HCl, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे जो गिवन है, क्या गिवन है, डैश ग्राम्स ऑफ MnO2। Now let us first fill up the equation according to our equation। तो कितने ग्राम्स ऑफ MnO2, इसका मास निकालोगे तुम, Mn का मास गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में, एंड यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट, तो वो आ रहा है इतना 146 ग्राम, तो 146 ग्राम्स ऑफ MnO2 से कितना HCl निकलेगा,
कितना यूज़ होगा HCl, 4 मोल्स ऑफ HCl, तो 4 मोल्स का मास क्या हो जाएगा 4 × 36.5, तो 146 ग्राम से इतना ग्राम्स ऑफ HCl आ रहा है, तो 5 ग्राम MnO2 यूज़ करने से कितना HCl चाहिए तुम्हें, क्लियर। इतने ग्राम्स MnO2 से इतना HCl चाहिए यूज़ करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो 5 ग्राम के साथ रिएक्शन के लिए हाउ मेनी, ये वहीं का वही रहेगा, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ जाएगा, सामने वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी this much grams of HCl which is required to react, right? And this finishes the chapter. Thank you.